سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، ارباب خاص و عام، عزیزان ملت، آج ایک تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ ایسے موقع پہلے بھی زندگی میں کئی بار آئے ہوں گے کہ جب ہم کسی کاروباری، بزنس مین، تاجر، بہت بڑے سماجی اور سیاسی لوگوں کے لیے ان کی وفات پر جمع ہوئے ہوں گے، لیکن آج کا جمع ہونا تھوڑا الگ ہے اور مجھے یہ اعزاز حاصل نظر دوڑائی جائے۔ ایک طرف اگر دیکھا جائے، میں 5 دن کشمیر کے سفر سے ابھی واپس آیا ہوں۔ شاید مجھے اتنا اندازہ نہ ہوتا، لیکن کشمیر میں جس جگہ پہ بھی میں گیا، وہاں پہ مولانا عبدالوحید قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات، ان کی سیرت اور کردار کا ہر جگہ میں نے تذکرہ خیر سنا۔ وہیں کشمیر میں کراچی میں وفات پانے والے ایک مولانا طیب کشمیری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعزیت کے لیے نعمان پورہ باغ میں ہم حاضر ہوئے، تو ان کی وفات کی تعزیت کے لیے بھی وہاں اگر کسی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا تو عبدالوحید قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہوا۔ اور دوسری طرف ہمارے چچا جان، میرے والد کے درینہ وفادار، غیرت مند دوست، میں کہوں گا سب سے زیادہ صبر کرنے والے دوست، حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کئی ملاقاتیں اور ان کی معلومات اور ان کے پاس جو ہمارے والدین سے محبت کے دلائل موجود ہیں وہ بے بہا ہیں، جماعت سے محبت کی دلیلیں موجود ہیں وہ لاتعداد ہیں۔ تو میں خوش قسمت ہوں اگر میں ان دونوں شخصیات عبدالوحید قاسمی اور سلطان محمود ضیاء رحمہم اللہ تعالی کی طرف دیکھوں تو میرا اپنا گھر یہ دونوں کام کرتا رہا ہے۔ عبدالوحید قاسمی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بانی رکن کہلائے، جنہوں نے کشمیر میں تحفظ ختم نبوت کی بنیاد اس انداز سے رکھی کہ آج اسمبلی کے ایوانوں میں بھی انہی کی محنت جاری اور ساری ہے، انہی کا تذکرہ، انہی کے کام کا چرچا ہر جگہ پہ جاری اور ساری ہے۔ اور دوسری طرف سلطان محمود ضیاء صاحب کا ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دینا یہ بھی میرے سامنے ہے۔ اور آپ کو ایک حیرت والی بات بتا دوں کہ یہ سپاہ صحابہ پنجاب کے صدر تھے، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر اچانک منظر سے غائب ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کارکن یا قیادت کو کہہ دیا جائے کہ آپ کا اب اس یہاں پہ دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں پہ آپ چل نہیں سکتے، یا کسی کے خلاف ویسے ہی کوئی بات ہو جائے تو ہر بندہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، ہر بندہ لڑنے جھگڑنے پہ اتراتا ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پنجاب کا صدر ہو اور پورا با اختیار صدر ہو اور ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اور وہ یہ کہہ کر اپنے منہ پہ زپ لگا لے، اپنے منہ کو خاموش کروا لے کہ میں نہ کسی اور جماعت میں جاؤں گا، نہ اپنی جماعت کے کسی ایک فرد پہ تنقید کروں گا، نہ اس پہ تبصرہ کروں گا، یہ کتنی ہمت اور حوصلے والی بات تھی۔ ان کو اندازہ تھا جنہوں نے ان کو گرانا چاہا،
जो उनको पीछे हटाना चाहते थे, उनकी आखिरी जिंदगी में वो आके पांव पड़ गए कि हमने आपको हटाया है, हमने आपको पीछे किया है, हमारे से गलती हुई है। लेकिन ज़रफ़ देखिए, इतने साल 1995-96 से लेकर 2026 तक वो 30 साल सब्र का दामन थामे हुए अपने घर में, अपने शहर में, अपनी जिंदगी को एक खास जगह तक रुका कर रहे। लेकिन आज तक न कभी जुबान जमात के खिलाफ खोली, न उन्होंने जमाती जिम्मेदारान के खिलाफ कभी लबकुशाई की, न उन्होंने अपनी मुखालफत करने वालों के लिए कुछ कहा। आज हमारे जमाने में इतने बड़े जिगरे की जरूरत है कि अगर कोई बुरी बात भी हो जाए तब भी अपने मिशन और नजरिए की खातिर, बदनामी से अपने नजरिए को बचाने के लिए हमें वो किरदार अपनाना चाहिए जो मौलाना सुल्तान महमूद ज़िया ने अपनाया है। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें वो किरदार अपनाना चाहिए जो अब्दुल वहीद कासमी ने आजमाया है। हदीस के अल्फाज का मफहूम नकल कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों से, सीनों से इल्म नहीं निकाला करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा को इल्म का वो महवर बनाकर लोगों की मजलिसों से अपने पास बुला लिया करते हैं, इल्म उनके दिलों में उठा लिया जाता है। तो फिर आज हमारी पाकिस्तान और कश्मीर की आवाम के लिए ये कितना बड़ा सदमा है कि एक बहरे बेकरा जिसने खत्म नबुव्वत का पहरा दिया हो, और एक बहरे बेकरा जिसने नमूसे सहाबा और अहले बैत के लिए अपनी जिंदगी खपाई हो, वो कब्र की पाताल में उतर जाए। उनके जाने के बाद वल्लाह उनका मिशन कभी नहीं रुक सकता, उनका काज कभी नहीं रुक सकता, उनका नजरिया कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरे वालिद गिरामी कदर अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद 3 मार्च 1953 को पैदा हुए। ये उस वक्त पैदा हुए जब मेरे दादा जान मौलाना मोहम्मद अली जामबाज पाकिस्तान के सबसे पहले मुबल्लिग जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की रहमतुल्लाही ताला अलैहि की तरफ से लगाए गए थे, लायलपुर फैसलाबाद के लिए उन्हें मुकर्रर किया गया था। 3 मार्च 1953 को जब वालिद शहीद की पैदाइश हुई तो मेरे दादा जान सक्खर जेल में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा आफ़ताबे हुदा नूरे हुदा सरफराज़े रज़ा ताजदारे गिना सय्यदे ज़ीशा रूहे गुलिस्ता शम्मे फिरोज़ा साहिबे कुनमका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत के पहरे के लिए कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे थे। और जब 1988 में मेरी पैदाइश हुई, मेरे वालिदे गिरामी कदर हजरत अम्मा आइशतुस सिद्दीका की इज्जत के पहरे के लिए मियां वाली की जेल में कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे थे। आज उन खानदानों के खानवादा यहां पे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में यह नहीं कहा कि तनवीर इलियास को बुला लिया जाए, राजा फरूक हैदर को बुला लिया जाए, सरदार अतीकुर रहमान वजीर आजम रहा है उन्हें बुला लिया जाए, अनवार को बुला लिया जाए। उन्होंने कहा कि सहाबा के गुलामों को बुलाया जाए, उन्होंने फरमाया कि खत्म नबुव्वत के परवानों को बुलाया जाए। अगर इस जानिब भी देखा जाए उनके जनाजे के लिए किला कोना कासम बाग मुकर्रर कर लिया जाता, लेकिन उनकी फरमाइश के मुताबिक खत्म नबुव्वत नमूसे सहाबा के उस परवाने के लिए खैरुल मदारिस की वो जगह मुकर्रर की गई जहां से वो दर्स तदरीस का आगाज कर चुके थे, जहां वो इल्म हासिल कर लिया करते थे। इनके इल्म में, आपके इल्म में इजाफा कर देना चाहता हूं कि मौलाना सुल्तान महमूद ज़िया हमारी जमात के सीनियर मरकजी नायब सदर भी रहे। मेरे वालिदे गिरामी कदर दुनिया के असफार पे रहते, उनके पासपोर्ट पे 35 ममालिक का वीजा लगा हुआ है। वो हर 3 महीने में कई कई मुल्कों का सफर करके आते, लेकिन जब जब वो सफर पे रहते उनकी मसनद क़यादत पे मौलाना सुल्तान महमूद ज़िया साहब खड़े होते। ये इस बात की दलील और अलामत है कि उन्हें मेरे वालिदे गिरामी कदर को अपने इस बावफा दोस्त पे कितना एतमाद था, वो कितना फख्र किया करते थे। जब ये मामलात खराब हुए तो मेरे वालिद जेल में थे, आखिरी जो जेल थी मुल्तान जेल से पैगाम भेजा कि सुल्तान महमूद मेरे आने तक तूने कोई कदम नहीं उठाना, मेरे आने तक तूने किसी से शिकवा कुना नहीं होना, मेरे आने तक तूने लबकुशाई नहीं करनी। अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि ज़ियाउर रहमान फारूकी का लाशा जेल से हमारे घर में आ गया, लेकिन वफा तो देखिए उस अकीदत के महवर का वो खास तवज्जो वाला जुमला तो देखिए।
उन्होंने कहा मेरे आने तक तूने लब नहीं हिलाने। ज़ियाउर रहमान का जनाजा उठ गया, लेकिन सुल्तान महमूद ज़िया ने अपनी सारी जिंदगी कभी लब नहीं हिलाए, अपनी जुबान से अल्फाज नहीं कहे। आज हमारे अंदर भी ऐसे हौसलों की जरूरत है, ऐसी हिम्मत की जरूरत है। और हाँ, बात खत्म करने वाला हूं, उनके जज्बे, उनके वलवले, उनकी औलाद की शक्ल में भाई यासिर कासमी हो, अब्दुल शुकूर रब्बानी हो, उनकी शक्ल में इस पूरी दुनिया के रहने वाले सुन्नियों के लिए खत्म नबुव्वत के परवानों के लिए काफी है। ये इल्म सिर्फ इनके कंधों पर नहीं है, ये हमारे कंधों पर भी आ गया है। ये जिम्मेदारी हम पे भी लागू हो गई है कि अगर खत्म नबुव्वत की बात हो, अब्दुल वहीद कासमी की तरह हम जिंदगी गुजार दें। अगर नमूसे सहाबा की बात हो तो सुल्तान महमूद ज़िया को आइडियल समझ लिया जाए, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी सहाबा की इज्जत की खातिर कुर्बान कर डाली। और इतने वाकयात, इतने किस्से उनके पास हुआ करते थे। मैं एक दफा उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, मेरा दिल ही ना किया कि मैं उठ के वहां से इजाजत ले लूं, हालांकि मुझे आगे प्रोग्राम पे जाना था। वो बातें करते जा रहे थे, मैं महवे हैरत में उनके तरफ देखता जा रहा था। और मैं हैरत ज़दा था कि एक बंदा हमारी जमात के दस्तूर और उसूल पे चलने वाले कायदीन के इतने वाकयात को अपने सीने में दफन किए बैठा है। इसका कितना हौसला और हिम्मत है। आज याद पड़ता है कि उन वफात पाने वाले अजीम लोगों का असासा हम हैं, हमारी सुन्नी कौम है, हमारी जमात है, हमारे कायदीन है, हमारी अवाम है। और हमारा ये अहद होगा कि जब तक जिंदा रहेंगे तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का अलम भी लहराते रहेंगे। हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके लहराएंगे या नहीं लहराएंगे। और इंशाअल्लाह जिस तरह खत्म नबुव्वत के लिए मैंने कल मल्लोट के इलाका बाग में, इनको इल्म है, भाई यासिर को वहाँ पे खिताब किया। सरदार तनवीर इलियास साहब भी आए और भी सियासी समाजी लोग वहाँ पे आए। वहाँ जिस इदारा में मैं था, वहाँ के बानी मौलाना अफजल कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने बड़ी हैरत वाली बात की। बात ख़त्म करने लगा हूँ आपके इल्म में इजाफे के लिए, ये इजाफी बात है। फरमाने लगे 1974 में ज़ियाउर रहमान फारूकी को साइकिल पे लेके मैं लाहौर की गलियों में सैर करवाया करता था और अज़मत ख़त्म नबुव्वत के लिए लेके चला करता था। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, शायद इसका मुझे भी पहले इल्म नहीं था। वो फरमाने लगे जो 1973 और 74 में कादियानियों को काफिर करार दिया गया, फरमाने लगे मैं अपनी आंखों का चश्मदीद गवाह हूं। मौलाना अब्दुल खालिक साहब मेरे रफीक रहे। मौलाना अफजल कादरी साहब फरमाते हैं कि खत्म नबुव्वत में कादियानियों को काफिर करार दिलाने में मौलाना मुफ्ती महमूद का चेहरा जरूर दुनिया के सामने था, क्योंकि वो तर्जुमान की हैसियत से मौजूद थे। लेकिन पीछे जो मेहनत थी वो ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद की थी। पीछे जो तमाम की तमाम कार्बन सलाहियतें थी वो मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद की थी। तो फिर हमें, मुझे बिलखुसूस इस बात का फख्र होगा कि खत्म नबुव्वत के लिए भी हमने कुर्बानियां दी हैं, अज़मत सहाबा के लिए भी हमने कुर्बानियां दी हैं। और इन कुर्बानियों में मुफ्ती अब्दुल वहीद कासमी साहब भी शामिल हाल रहे, सुल्तान महमूद ज़िया साहब भी शामिल हाल रहे। और हमारा आज ऐलान है, हम इनके बेटे यहां पे आपसे इस्तदा कर रहे हैं कि आइए वादा करते हैं, अहद करते हैं कि जैसे वो दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर गए, वैसे उनके जाने के बाद हम उनके इल्म को, उनके हिलम को, उनके तकवे को, उनके सब्र को, उनके शुक्र को और उनकी तमाम सलाहियतों को लेकर दमाने के अंदर फैला देते हैं। खत्म नबुव्वत का नारा लगाने का भी ऐलान करते हैं और असहाब मोहम्मद के दिफा का भी ऐलान करते हैं। साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। और उनके जाने से हमारे ईमान और मजबूत हो गए हैं, हमारे जज्बे और पक्के हो गए हैं। और हम इसी बात के साथ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं कि तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।